So good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Now, this lesson number 15, brain test, we have already completed, I hope, or it was remaining. No, ma'am, it was remaining from question number 3. Okay, from Yes. question number 3, it was remaining. Okay, then from question number first, you understood A, B, and C, how this formation. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then second also, rectangle is the base Yes, ma'am. circle. Then third question, face and ITER, or you can NOLOB or NALE, whatever you feel means. Any other word you have taken out the meaningful word apart from these? Okay, fine. Then you can write down face here and ITER here. And this spelling I had made you clear already. ITER. No, ma'am. Okay, now for this next you can note it down. Letters, look at the letters and their code, answer the questions that follow. Now you have to, which number represents the third letter after the last T? 6. 6. How 6? Can anybody tell me? Ma'am, because ma'am, there are 2 T and after the last T, there is 6. Very Yes. good, very good. Very good. Then next, another meaningful word out of the above letters. Ray. Ray. R, Ray. R-A-Y, ray. Yes, ma'am. Okay. R-A-Y, ray. Then R is there. Where is the R? Yes, R-A-Y. Okay. Ma'am, rain. Ah, and rain can also be there. R-A-I-N, rain can also be there. And I have written start. S-T-A-R-T, start. S is also there. S-T-A-R-T. Okay. And Okay, ma'am. the word do the numbers 8, 6, Notary. 6, 8, 9, 4, 3 to make notary. Clear? Now, first, I will tell you the meaning. Who was asking that ITR? ITR meaning means the International Thermonuclear Experimental Reactor. This is an international nuclear fusion research. Okay. Okay. So, International Thermonuclear Experimental Reactor. If you want to write it down, you can write it down. Should I speak the spelling? International, INTERNATIONAL, International Thermo, Thermo, nuclear, 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 experimental, EXPERIMENTAL, experimental reactor. तेरे को याद नहीं है दादा के फोन नंबर Okay. I hope it is clear. Yes, ma'am. Yes. Okay then. And then Okay. this सही है D. this is D will be the correct. Okay. Yes.
And फिर what? इमरजेंसी फंड भी होएगा ना, तेरे वाले में भी तो है। Hello, hello. मेरे में लॉक में कौन Please, लगाते हो, तभी तो इस्तेमाल कर पाते हैं। in the house who all are speaking, please switch off your mic. Mute your mic. पीछे से किसकी मदर और किसमें बातचीत हो रही है, प्लीज। मैंने आपको बोला बैकग्राउंड से अगर आपके फैमिली मेंबर्स कोई बात कर रहा है तो आप अपना माइक म्यूट कर लो। Now this word notary, you have written the word notary. Do you know the meaning of notary? It is notary is a person authorized to perform certain legal formalities. कोई legal formalities होती हैं तो वो perform करने के लिए ये notary करके एक person होता है। person की एक बोलते हैं वो post होती है notary बोल के, कि ये इनको authority दे दी जाती है कि कोई भी legal formalities होती है या कुछ certificate या कोई contracts या कोई deeds डॉक्यूमेंट्स पे कोई भी सिग्नेचर वगैरह है तो ये नोटरी साइन करते हैं। होप इट इज क्लियर एंड दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग डी। हाँ, डी विल बी देयर। You can see the sequence which is the means when square is out, when the circle is out, and when the triangle is out, and accordingly this D figure will be the correct. Now next lesson, restaurant etiquette. Now this is the last lesson of the annual course. Uh, After this last lesson, in our next class, we are going to do with the current affairs, or we will recall all the lessons which are coming in the annual course. Plus, I am going to give you in the PDF form the all the question means all the lessons, solved lessons, आंसर्स लिखे हुए मैं पीडीएफ के रूप में आपको मैं दे दूंगी, बट इन पीडीएफ मीन्स ओवरऑल सब एक साथ नहीं दूंगी। 7 to 23 ऐसे एक बार में 43 से ऐसे मीन्स पार्ट्स में दूंगी मैं, ठीक है ना, ताकि आपका अगर काम नहीं हुआ होगा तो उसमें आप बुक में कंप्लीट कर लेना। Now restaurant etiquettes. What are restaurant etiquettes? Restaurant etiquettes are those etiquettes that are the behavior which you should follow. Dog. Vansh Arora, mute yourself. Restaurant etiquettes are the behavior which you should follow while you are in a restaurant, when you are going out to have the food in the restaurant. Now when we eat at a restaurant, we need to act appropriately. एक अच्छे से behavior हमको वहाँ पर परफॉर्म करना पड़ता है, अच्छे से रहना पड़ता है। ये नहीं कि घर में जैसे खाते हैं वैसे ही वहाँ पर भी, पर वहाँ पर हमको थोड़ा सा ठीक से अपना आपको परफॉर्म करना पड़ता है। Here are some tips we need to follow, और हम रेस्टोरेंट में किस टाइप से अपने आप को प्रेजेंट करें। These are the tips. First, listen politely to the server when they are telling you the specials and taking your order. Now, first and foremost thing to keep in mind while you are in a restaurant is to listen politely. अच्छे से सुनना है। To whom you have to listen? To the server, जो आपको सर्व कर रहा है, जो आपको ऑर्डर लेने के लिए खड़ा है, उसका आपको अच्छे से सुनना है कि वो क्या चीज स्पेशल्स बता रहा है उस रेस्टोरेंट की, ताकि आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सको उसको। So first and foremost thing, you have to listen to the server, the one who is serving, maybe the waiter. Second, stay in your seat unless you must get up. अपनी जगह से बैठे रहना है, अपनी जगह पर ही बैठे रहना है जब तक कि आपको कहा नहीं जाए। Then order clearly and accurately so the server will know what you want. जो भी आपको ऑर्डर प्लेस करना है, खाने का ऑर्डर देना है,
वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि अभी कुछ बोला, थोड़ी देर में कुछ बोला, एकदम क्लियर कट होना चाहिए आपके माइंड में, माइंडसेट होना चाहिए कि आपको क्या ऑर्डर करना है और उसको क्लियरली वेटर को बताना है कि हमें क्या किस टाइप का खाना चाहिए, सो दैट ही कैन मेक नो मिस्टेक इन सर्विंग यू व्हाट यू वांट। यूज योर मैनर्स, से प्लीज एंड थैंक यू ड्यूरिंग द मील। अब ड्यूरिंग द मील, जब आप खाना खाते हो, लेते हो उससे, जब वो सर्व करता है वेटर, तो आपको क्या यूज करना है वर्ड? प्लीज एंड थैंक यू। जब खाने लेते वक्त प्लीज और थैंक यू का वर्ड का इस्तेमाल करना है, और रेस्टोरेंट में ही नहीं बल्कि सब जगह आपको दीज टू वर्ड्स, पोलाइट वर्ड्स, यू हैव टू use wherever possible. Whenever you are asking something from anybody, you have to use the word please. And whenever the person is helping you in anything, then you have to speak out thank you. You have to at least show your gratitude, give a means a token of thanks to from your words to that person कि उसने आपकी मदद की. So not only in the restaurant but means outside the restaurant also, in your day-to-day life also, you should use the word please and thank you, and especially when in your restaurant, then this is a manner to say please and thank you during your meal, when the waiter is asking you to give your order, to place the order. So you can ask the in a polite way to the waiter that please can you help me, can you serve us like this. And when the waiter is already served the things, the eatables to you, then you can say thank you to that waiter. So these are the words of etiquettes, good manners. Keep your napkin in your lap. Now the another thing is to keep in mind that you have to keep your napkin on your lap. Lap means अपने टेबल पे नहीं रखना है, अपने पास यहाँ पर जब आप बैठते हो तो सामने की तरफ रखना है, अपने पास ही. Then use your napkin. Do not wipe your mouth on your sleeves or hands. और जब वो napkin provide हुआ है आपको, whether it is, now what is a napkin? Napkin may be in a form of tissue paper. या तो वो टिश्यू पेपर हो सकता है जो रेस्टोरेंट में रखा है, और या आपका वो इन द क्लॉथ फॉर्म में भी हो सकता है, कपड़े के रूप में भी हो सकता है. तो इट कैन बी ऑफ एनी मटेरियल दैट नैपकिन. और वो नैपकिन अगर वहां पर पड़ा है तो उसको आपको लेकर के आपके सामने रखना, ताकि आप खाना जब गिराएं तो ना आपके कपड़ों पे नहीं गिरे. एंड जब आप खाना खा लेते हो या खा रहे हो तो आपको you have to use that napkin to wipe your mouth. You should not wipe your mouth with your sleeve के लैप में रखने के बोला तो सामने ही पड़ा है नैपकिन अपने ऊपर कि खाना नहीं गिरेगा, और हाथ से मुंह अगर पहुंचे जा रहे हैं अपनी स्लीव से, तो दिस इज नॉट अ गुड behavior. So use the napkin to wipe your mouth, and you should not wipe your mouth मुंह स्लीव से या हाथ से नहीं पहुंचना है. यूज द यूटेंसिल्स व्हेन नीडेड. और जब आपको जरूरत है तभी आपको वहां के बर्तन काम में लेने हैं, यूटेंसिल्स काम में लेने हैं. अब नाउ वेटर्स हैव पुट द extra spoons and all on your table, and the plates and bowls are also extra, but how much you need, you use that much only. ये नहीं कि एक्स्ट्रा चम्मच और एक्स्ट्रा बोल है तो उठा लिया, एक तो अपने सामने रखा और एक से बजाने लग गए. uh, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. हाउ मच यू नीड द यूटेंसिल्स, यू शुड यूज दैट मच ओनली, एंड यू हैव टू यूज द यूटेंसिल्स व्हेन नीडेड. जब जरूरत हो, जब वो सर्व कर रहे हैं खाना और जब आपने खाना स्टार्ट कर दिया है, तभी आप वो यूटेंसिल्स लेकर के आप उसको यूज कर सकते हैं प्रॉपरली. Now chew with your mouth closed and speak after you have swallowed. अब chew with your mouth closed. जब आपके मुंह में खाना है तो you have to chew it well. और कैसे chew करोगे, कैसे चबाओगे उसको? मुंह बंद करके. मुंह में खाना है, मुंह बंद करके, और then you can chew it well. Otherwise मुंह में खाना है and बोले जा रहे हैं तो मे बी पॉसिबल कि खाना वो मुंह से बाहर आ जाएगा और सामने वालों के भी
पास आ सकता है। तो इसीलिए यू हैव टू च्यू द फूड वेल एंड स्पीक आफ्टर यू हैव swallowed। और जब वो खाना आपने मुंह का खाना जो खत्म कर लिया है, आपने स्वॉलो कर लिया है, तभी आप बात करो वहां पर बैठे लोगों से। डू नॉट शोव लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड इन योर माउथ एट वंस। एक साथ में आपको खूब सारा खाना मुंह के अंदर नहीं भर लेना है। छोटे छोटे पीसेस तोड़ करके आपको मुंह में डालना है। तो डू नॉट शो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन योर माउथ एट वंस। एक समय में आपको एक छोटा पीस ही मुंह में डालना है, ज्यादा बड़ा अमाउंट मुंह में नहीं डालना है, ताकि आप उसको अच्छे से छोटा डालोगे, कम मुंह में खाना डालोगे तो वो आपको च्यू करने में इजी रहेगा और जल्दी ही आप उसको swallow कर सकोगे। डू नॉट ड्रिंक विद द माउथफुल ऑफ फूड। माउथफुल ऑफ फूड मीन्स मुंह भर के खाना नहीं खाना है, थोड़ा सा अमाउंट भी कम डालो और मुंह भरो मत। डू नॉट ड्रिंक, पानी भी जब पियो तो मुंह भर के पानी, मुंह में भर लिया पानी और फिर धीरे 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 उसको swallow करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी भी, जैसे खाना थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं वैसे ही पानी भी थोड़ा थोड़ा मुंह में लेकर के पीना है। डू नॉट रश ईट एट अ रिलैक्स पेस मीन्स जल्दी जल्दी भी नहीं खाना। अब एक बात और है ये कि जल्दी जल्दी भी नहीं खाना है और आराम से धीरे धीरे अच्छे से एक एक जो बाइट है आप ले रहे हो उसको अच्छे से च्यू करके रिलैक्स मूड से आराम से खाना है। जल्दी जल्दी मुंह भर लिया, कभी पानी गिर रहा कभी खाना गिर रहा, इस टाइप से रशिंग कंडीशन में आपको खाना नहीं खाना है। व्हेन यू sit properly, relax in a relaxed position, have small pieces of the food in your mouth. If you want to drink water, little bit water only you drink it, and so that in the proper way you can have your food. Participate in the table conversation but do not interrupt others। अब जो टेबल पे आपके फ्रेंड्स बैठे हैं या फैमिली मेंबर्स बैठे हैं या पेरेंट्स बैठे हैं तो उनके साथ आपको बात करना है, तो बात कीजिए बट डू नॉट इंटरप्ट अदर्स। जो दूसरे बात कर रहे हैं तो उनको बीच बीच में डिस्टर्ब करके आपको अपनी बात नहीं रखनी है, बट लेट देम फर्स्ट कंप्लीट देयर कन्वर्सेशन। उनको उनकी बात खत्म करने दीजिए और उसके बाद ही अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोलिए। एंड दिस इज अ गुड टेबल बिहेवियर, टेबल मैनर्स दैट यू शुड फॉलो। कि आप जब सब एक साथ बैठे हैं तो आप भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपको ही बस बक 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 करे जा रहे हैं, मुंह में खाना भरा हुआ है और आप अपनी बात ही रखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों की बात भी सुननी है, पहले वो क्या बोल रहे हैं और धीरज से सुननी है, ये नहीं और कुछ बात कर रहे हो तो वो भी धीरे से बात करनी है, ज्यादा जोर से चिल्ला चिल्ला करके नहीं बोलना है। आई होप इट इज क्लियर नाउ all these table manners। Yes, ma'am. Now true and false, I should keep my napkin on the table while I'm eating। False. Where it should be kept, where it should be kept? In our laps. Yes, in your lap। आपकी गोदी में रखना उसको सामने, ताकि आपके खाना खराब गंदा खाने से कपड़े गंदे ना हो जाए। I should say thank you to the waiter every time he brings me something। True. True। जब कभी भी वो कुछ भी एक छोटी सी छोटा आइटम भी लेकर आता है तो you should say thank you। I can talk to mom and dad with food in my mouth because we are family। False. False। ये थोड़ी ना कि मम्मी पापा हैं तो हम अपने मुंह में खाना भर करके और बात करते शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हम अच्छे से च्यू करें, swallow करें, उसके बाद ही मम्मी डैडी से भी बात कर लेंगे। If I am done eating, I can walk out and check out the restaurant। False. क्यों? false, हाँ, ऐसा नहीं false, कि जल्दी जल्दी हमने खाना अपना तो खत्म कर दिया और फिर घूमते जा रहे रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट अदर्स ऑल्सो फिनिश द ईटिंग एंड यू शुड नॉट रोम अबाउट हियर एंड देयर। might be you can disturb the other people। I should use a low voice so I do not bother other people around। Yes, it is true कि आपको जो भी बात करनी है आपको धीरे बात करनी है, ताकि आपकी टेबल पे आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स है वही सुन सकें। जोर जोर से चीख चीख के नहीं बोलना है,
ताकि दूसरों को भी लगे अच्छा आज ये रेस्टोरेंट में आया है खाना खाने। तो ऐसे नहीं लगना चाहिए, दूसरों को पता भी नहीं पड़ना चाहिए। आप बातें करो बट स्लोली दैट यू एंड योर फैमिली मेंबर्स एंड योर फ्रेंड्स आर ओनली एबल टू हियर योर वॉइस। दूसरे ताकि अपनी कन्वर्सेशन में दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं हो। So these are some etiquettes, restaurant etiquettes you should follow. Hope it is clear. So in our next class, we are going to continue with GK, recall of all the lessons of annual course which is coming. Before that, I will give you the PDF of GK only, in which we have completed lesson 7 and mostly the uh, beginning lessons which are coming in the annual course, the 7, 9, 10, 15, whatever lessons are coming. So that I will give it to you in the PDF form. You can complete it. Those who have not completed in the बुक, मार्क जिसने बुक में नहीं किया है। और जो करंट अफेयर्स में दूंगी वो करंट अफेयर्स 10 करंट अफेयर्स आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होंगे और 10 करंट अफेयर्स आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगे। तो ये करंट अफेयर्स आप लोगों को एक पेपर पे करके, और क्योंकि नोटबुक तो नहीं बनाई है, सो यू शुड डू इट इन द पेपर, दोज करंट अफेयर्स। अभी नहीं दूंगी मैं, नेक्स्ट क्लास में दूंगी। और वो आपको पेपर इस आपकी जीके बुक के पीछे अटैच कर देना, ताकि आपका वो करंट Yes. अफेयर्स वाला पेपर इधर-उधर एग्ज़ाम के वक़्त आपको इधर-उधर फाइंड आउट करने की ज़रूरत ना पड़े। आप सीधा-सा अपनी जीके की बुक खोलोगे, तो जीके का कोर्स भी उसी में और करंट अफेयर्स वगैरह भी सब उसी में मिल जाएगा, वो पेपर उसी में मिल जाएगा। तो वो अटैच करना, स्टिक कर लेना, ताकि वो जब आप बुक खोलो तो इधर-उधर गिर के नहीं इधर-उधर चला जाए। बट वो आप स्टिक कर देना, स्टेपल कर देना बुक में पीछे लास्ट में, जब मैं वो करंट अफेयर्स दूँगी, ठीक है ना? क्योंकि नोटबुक तो बनाई नहीं है इसलिए। एंड नाउ ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरी लेसन carefully. If any doubt you can ask me in the next class, ताकि आप थोड़ा-थोड़ा अभी लर्न करोगे क्योंकि कोर्स बहुत है एंड यू हैव टू लर्न। सो लर्न इट। इफ anywhere any doubt you find out, you can ask me without any hesitation. Clear? आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप अपना डाउट क्लियर कर लेना। और अब आप प्रेजेंट एक बार और टाइप कर दो, टाइप वंस अगेन प्रेजेंट before leaving the class.